حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ رسول نبی سے اعتماد کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اندر آپ لوگ آ جائیں. اندر بہت جگہ ہے. اندر آ جائیے آپ لوگ. الشہداء امام حسین علیہ السلام کو جس یقین اور اعتماد کے ساتھ ہدایت کا چراغ رہا ہے اور نجات کا سفینہ قرار دیا ہے، کیا ان کی سیرت کو سننے کے بعد ان کے کردار کو مجالس میں پیش کرنے کے بعد بہت سارے ادھر آ جاؤ پہنچے گا ہم لوگ اپنا تجزیہ کریں، اپنا انالیسس کریں کہ کیا ہم میں اس محرم کا چاند دکھنے کے بعد کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے یا ہم ویسے ہی سپاٹ چلے جا رہے ہیں جیسے عید اور بقرعید کے بعد ویسے ہی خالی ہاتھ ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے فیسٹیول ہیں یا جتنے بھی ایسے پروگرام ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی سیرت کے آئینے میں منعقد کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. محرم اس لیے ہم مناتے ہیں سید الشہداء کے ذکر کو اس لیے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس ذکر سے فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس فائدے سے اپنی طرف متوجہ کریں، اپنی طرح اٹریکٹ کریں کہ دیکھو ہم ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، ہم ذکر سید الشہداء کے آئینے میں ذکر رسول سنتے ہیں، سیرت رسول سنتے ہیں، ولایت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تم جانچو اور فرق ہو عام انسانوں میں اور ہم میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. اگر یہ فرق نہیں محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. زبانی جمع خرچ کرنے والوں کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ اسی حضرت انسان کو جس کی وجہ سے اللہ اور شیطان میں اتنا زبردست جو ہے ٹکراؤ ہوا کہ آدم کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس قیامت تک یہ ٹکراؤ جاری رہے گا. شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، رحمان اپنا کام کرتا رہے گا. شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے ٹریک سے ہٹاتا رہے اور رحمان کے نمائندوں کا کام یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہیں. اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے. دیکھیے میں بہت سی چیزیں بچوں کے لیے کہتا ہوں، جیسے میں اپنے بچوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا ایک رکن سجدہ ہے.
नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदे के बगैर नमाज नहीं हो सकती। आप नमाज के तमाम अरकान को अदा कीजिए और सजदा छोड़ दीजिए तो नमाज ज़ीरो हो जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। और सजदा भी करने का जो है एक सलीका है, एक तहजीब है। यानी आप जो है सिर्फ सर को, अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख दें तो वो सजदा नहीं हो सकता, बल्कि सजदा करने के लिए आज़ाए सजदा मुतय्यन है कि 7 चीज़ों का ज़मीन पर होना ज़रूरी है। पेशानी का होना ज़रूरी है, दोनों हथेलियों का होना ज़रूरी है, घुटनों का होना जो है ज़रूरी है, दोनों अंगूठों का होना ज़रूरी है। अब ये भी आप देखिए कि अंगूठों के बीच में इतना बड़ा नाखून ना हायल हो जाए कि ज़मीन जो है वो आपका अंगूठा जो है टच ना करे, तो पता चला कि आपका सजदा जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। लेकिन सजदा करने में भी आप जब सजदा करते हैं तो 7 आज़ाए सजदा में ज़रा सा जो मेरी गुफ्तगू हो सकता है कि थोड़ा उस तरह की हो कि आपको थोड़ा बार गुजरे, लेकिन जो है ये बातें पहुंचना हमारे बच्चों तक जो है ज़रूरी है। आप जो है इस ज़रूरी चीज़ को समझिए। फर्श अज़ा ये स्कूल इसीलिए है कि यहाँ वाजिबात से लेकर के, इलाहियात से लेकर के, नबूवत से लेकर के इमामत तक, यानी हर मसले, हर फिक्र और हर मौजू पर जो है यहाँ गुफ्तगू होती है। ये दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, दुनिया के कॉलेजेस में तखस्सुस होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ हर मौजू पे बोलने और बात करने का जो है हमें हुनर अहले बैत ने दिया। इसलिए कि दुनिया के सामने एक इकलौती यूनिवर्सिटी सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर दरसगाह में, इसी स्कूल में, इसी कॉलेज में केमिस्ट्री भी पढ़ने वाला है, मैथमेटिक्स भी पढ़ने वाला है, हिकमत भी पढ़ने वाला है, फिक़्ह भी पढ़ने वाला है, उसूल भी पढ़ने वाला है। पढ़ाने वाला एक ही उस्ताद है, पढ़ने वाले जो है अलग अलग जो है मौजू के, अलग अलग मौजू के हैं, लेकिन पढ़ाने वाला एक है। गोया सादिक़ आले मोहम्मद ने बताया कि हम उसके नुमाइंदे हैं जो सबसे बड़ा सच्चा है, जो सबसे बड़ा अमीन है, यानी हम रसूल के सच्चे नुमाइंदे हैं। रसूल भी इसीलिए आया था, वो कह रहा था वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान ने जो है इसकी तफसीर बयान की और बताया कि मेरा हबीब जो है तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देने के लिए आया है। और जब उलमा ने इसकी डेफिनेशन की किताब व हिकमत की, कहा कि किताब व हिकमत में दुनिया के तमाम उलूम आ जाते हैं, जितने भी इल्म हैं वो इस किताब व हिकमत में छुपे हुए हैं। इसीलिए मेरे रसूल ने दुनिया के तमाम उलूम का दर्स जो है अपने जो है लेक्चर्स में, अपने खुतबों के अंदर दिया हुआ है। ये अलग बात है कि मुसलमानों को समझ में नहीं आया, इसलिए कि मेरा रसूल जो है उस कुरान को समझाने के लिए आया था। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी किताब की तालीम देने के लिए आया है, जिसमें कुरान ने यह दावा किया है कि इसमें हर खुशकोतर मौजूद है, इसमें हर खुशकोतर मौजूद है। ये हमारी कमी है कि हम उसे नहीं समझ में आ रहे हैं, ये हमारी कमी है कि हम उन तक नहीं पहुंचे हैं जो रसूल जैसे हैं, जो रसूल की तरह किताब को पढ़ाने वाले हैं। मामला ये है कि मुसलमानों ने, ऐसा हुआ कि पढ़ना था मैथमेटिक्स, पढ़ने चले गए फिर पढ़ाने वाले मौलवी साहब के पास। अब जाहिर है मौलवी साहब कहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ाएं, कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ाएं, कहाँ से जूलॉजी पढ़ाएं। कहा भाई, मौलाना ने कहा कि भाई तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ना है तो तुम जो है वो इंटर कॉलेज में जाओ, डिग्री कॉलेज में जाओ, लेकिन यहाँ पर तो हमारे ऐसे टीचर थे, ऐसे मौलवी थे
کہ इनके पास हर तरीके का इल्म था। यहाँ तो मीडियम का भी झगड़ा नहीं है, जिस मीडियम के आओ, जिस जबान में, यानी मैं मान लीजिए उर्दू पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई आए और कहा कि आप जो है शेक्सपियर के नज़्मों को पढ़ाइए, मैंने कहा भाई मुझसे गालिब को पढ़ लो, मुझको मीर को पढ़ लो, मुझसे अनीस को पढ़ लो, मैं शेक्सपियर को नहीं पढ़ा सकता। कह रहे यार आप जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो और आप शेक्सपियर को नहीं पढ़ा सकते। मैंने कहा मैं पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अनीस को, मैं पढ़ाऊंगा नबीर को, मैं पढ़ाऊंगा गालिब को, मैं पढ़ाऊंगा मीर को, मैं पढ़ाऊंगा फैज को। कहा ये कौन सी बात हुई, शायर तो वो भी है, शायर तो ये भी है। कहा मैं ठीक है, लेकिन मुझे अंग्रेजी की शायरी का शऊर नहीं है, मुझे अंग्रेजी की शायरी का शऊर नहीं है। यानी ये दुनिया के मौलिम, दुनिया के टीचर जो है अपने स्पेशलाइजेशन में अपने इल्म को जो है दुनिया को सिखा सकते हैं, लेकिन जो खुदा का भेजा हुआ टीचर है, जो खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, वो हर मीडियम में हर इल्म को वो दुनिया के सामने जो है राज़ी करता जाता है। दोनों पढ़े मोहम्मद रहा था कि ये नमाज में सजदा जो है, इसमें आज़ाए सजदा 7 है और 7 का ज़मीन पे होना जरूरी है। लेकिन हमारी शरीयत आसान शरीयत, इसको क्या कहा गया है, दीने पहला, आसान मत। आप जो है नमाज आपको खड़े होके पढ़ना है, आप जो है इसी वजह से खड़े होके नहीं पढ़ सकते। शरीयत ने कहा बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, कहा जो है लेट के पढ़ लो, लेट के भी जो है नहीं दिमाग काम कर रहा है, कहा सिर्फ तसव्वुर कर लो, सिर्फ जो है बंदे और खुदा के रिश्ते का इजहार हो जाए, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। लेकिन कहा जो है शरीयत जो है आसान है। शरीयत ने इसी तरह आज़ाए सजदा के ताल्लुक से भी कहा कि ठीक है तुम जो है सजदे में गए, तुम्हारा जो है अगर अंगूठा किसी वजह से उठ गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारा सजदा हो जाएगा। घुटना जो है इधर उधर कर लिया, तुम्हारा सजदा हो जाएगा। हथेली भी जो है मान लो तुम्हारी उठा ली फिर रख लिया, तुम्हारा सजदा हो जाएगा। लेकिन पेशानी को अगर तुमने उठाया तो फिर सजदा जो है वहाँ खत्म। अब जो तुम दोबारा पेशानी रखोगे तो वो दूसरा सजदा होगा। नमाज में 2 सजदे हर रकात में, और उस सजदे के बीच में भी कुछ जो है जिक्र तुम्हें करना पड़ेगा ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए कि ये पहला सजदा था, ये दूसरा सजदा था। लेकिन सजदे का मामला ये है कि पेशानी अगर उठ गई तो फिर सजदा आपका मुकम्मल। अब एक जो है आपको मंजर जो है दिखाता हूँ, और यहाँ पर उन बच्चों के लिए जिनसे ये सवाल होता है कि तुम्हें मजलिस में जाके मिलता क्या है, तुम्हें मजलिस में जाके मिलता क्या है, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, और क्या मिलता है? मैं यही कहता हूँ कि हुसैन ही एक ऐसी चीज है, मैंने हदीस जो बयान किया और इसी ज़िम्न में मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये हुसैन ही की जात एक ऐसी जात है जो सजदों की भी आबरू है, और हुसैन ही की जात वो जात है कि अगर सजदे के बीच में भी आ जाए तो सजदा जो है वो बदलता नहीं है, सजदा सजदा ही रहेगा। मदीने का मंजर है, मदीने रसूल में मस्जिद नबवी है, रसूल सजदे की हालत में है और छोटा शहजादा हुसैन आ गया और पुश्त पे सवार हो गया। अब जो है जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ, या रसूलुल्लाह छोटा शहजादा जो है आपकी पुश्त पे है, जब तक अपनी मर्जी से न उतर आए, जब तक अपनी मर्जी से न उतर आए आपको जिक्र को बढ़ाते रहना है, यानी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे की तकरार करते रहना है। अब जो है ये पीछे जो सहाबा थे अब तक उनको आदत ये थी, रसूल जो है एक बार कहते थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ज्यादा से ज्यादा 3 बार कहते थे, इसलिए कि जानते थे मिजाज को कि अगर लंबा जिक्र हुआ तो इधर उधर ताकने लगेंगे, झांकने लगेंगे। चुनांचे जो है इन सहाबा के दिमाग में टेंशन हुई कि हुआ क्या,
اور بار بار جو ہے دیکھتے رہے. شریعت کیا مسئلہ بتاتی ہے کہ سجدے سے سر اٹھایا تو سجدہ گیا, اب جو ہے دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن مسلمانوں نے, صحابیوں نے جو ہے بار بار سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ رسول تو سجدے میں ہیں لیکن دکھائی حسین دے رہے ہیں. جب سر کو اٹھایا تو کیا ہے, رسول سجدے میں ہیں, دکھائی حسین دے رہے ہیں. اب سجدہ کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین کر رہے ہیں, یا حسین یا حسین کر رہے ہیں, بار بار حسین حسین کر رہے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ارے حسین حسین جو ہے صحابہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے بعد کہہ رہے ہیں, اور آپ نے ان میں سے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا, تم نے بار بار سجدہ اٹھایا. اب تم کو یہ چاہیے کہ تم دوبارہ نماز پڑھو. کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے کہ رسول نے کہا ہو کہ دوبارہ نماز پڑھو, بلکہ سب سے جو ہے رسول نے نماز ختم ہونے کے بعد یعنی اپنے سجدے کو طول دینے کی وجہ بیان کی, کیوں میں نے سجدہ کیا. اور کیوں سجدہ کیا؟ جبریل امین آئے اور تم بھی سمجھو کہ سجدہ کیوں کیا. نواسے کو اٹھایا اور سب کو دکھایا, منظر وہی تھا جو کل جو ہے باپ کے ساتھ ہونے والا تھا, اور کل جو ہے غدیر کے میدان میں ہاتھوں سے اٹھا کر کے مولا کائنات کو کہا تھا میں جس چیز کا مولا یہ علی اس کے مولا ہے. آج مسجد نبوی میں حسین کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں آنا حسین فارفو ہو, آئیے میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. یہ وہ ہے کہ اگر سجدہ جو ہے میں چاہوں تو اپنی مرضی سے جو ہے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. درود پڑھے محمد. ہر بار جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ ہونے کے بعد جو ہے یا حسین کیا. اب جو ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ یا حسین کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مجلس سے یا حسین کہنے سے جو ہے کیا جو ہے وہ ہوتا ہے. جب صحابہ کی عبادت میں زیادتی ہو گئی اور زیادہ ثواب مل گیا, گویا وہاں سے ہمیں نص ملی کہ دیکھو جو ہے اگر تمہیں اپنے سجدوں کو وقار بخشنا ہے تو تمہیں حسین کا نام لینا چاہیے. اور اس نماز میں اگر حسین آ جائیں, حسین کے بھائی حسن آ جائیں, حسین کی والدہ فاطمہ آ جائیں, حسین کے بابا علی آ جائیں, حسین کے نانا محمد آ جائیں, تو ان سجدوں کو اور وقار ملتا ہے. اس کو وقار اور بخشنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تو صحیح میں اس نماز میں جو ہے محمد اور آل محمد پہ درود جو ہے پڑھوا کر کے تمام مسلمانوں کو یہ مسلسل ریہرسل کرا دوں گا کہ دیکھو تم یہ جو ہے ایک دن کی بات نہیں, حسین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود پڑھے محمد. یہ حسین سے فائدہ. اور حسین جو کیا جو ہے کائنات میں آپ نے دیکھا, آپ نے کہیں دیکھا ہے یعنی آپ کو جو ہے مولوی کاٹ کھائے گا اگر آپ جو ہے اس کی نماز کے آگے جو ہے کھڑے ہو جائیں. تمہیں کوئی شعور نہیں ہے, جماعت ہو رہی ہے, امام صاحب آگے کھڑے ہیں تو ان کے آگے. لیکن حسین وہ ذات جو شریعت کو بدل دے, جو شریعت کے طریقہ کار کو بدل دے. گویا حسین نے بتایا کہ جو ہم کریں وہ شریعت, جو ہم کریں وہ شریعت ہے. مسلمانوں کو یہی سمجھنے میں غلطی ہے, مسلمانوں کو سمجھنے میں یہی غلطی ہوئی. وہ سمجھتے رہے کہ یہ جو ایک پریکٹس ہے کہ نماز ایسے پڑھو, نماز پڑھنا ہے. لیکن محمد و آل محمد نے کہا کہ نماز پڑھنا ویسے ہے جیسے ہم پڑھیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری ہر مجلس میں ذکر ہونا چاہیے محمد کا, علی کا, فاطمہ کا, حسن کا, حسین کا, یہاں تک کہ محمد تک کا سب کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت سے ہمیں شریعت معلوم ہے. ہمیں جو ہے حدیثوں سے جو نہیں سمجھ میں آئے گا. حدیث کے تفہیم کرنے والے ان ضوابط مقدسہ کی
सीरत को देख करके जो है महसूस किया। मैंने एक जो है आपको सीन में दिखाया था कि किस तरह जो है छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे को वुज़ू करके दिखाया और एक बुजुर्ग ने महसूस कर लिया कि मैं गलती करूँ। अहले बैत का तरीका ये। अब एक सवाल आजकल जो है ये हो गया है, देखिए शरीयत का ये भी मसला है कि एक इबादत एक वक्त में होती है। एक इबादत एक वक्त में होती है। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप चाहें कि हज भी कर लें नमाज की हालत में तो नहीं हो सकता। आप चाहें कि नमाज की हालत में ज़कात दे दें, नहीं हो सकता। लेकिन अहले बैत इससे अलग है। अहले बैत इससे अलग है। हमारी जो है नमाज नहीं हो सकती। हम अगर जो है वो ज़कात देने लगे और लोगों ने देने की कोशिश भी की, नमाज एक उनकी नमाज भी बातिल हो गई, न नमाज हुई न ज़कात दी गई। लेकिन अली तो वो हैं जिन्होंने नमाज भी पढ़ी और ज़कात भी दी, जिन्होंने नमाज भी दी, नमाज भी पढ़ी और ज़कात भी दी। और देखिए और लोगों की नमाज की हालत में ज़कात देने की कोशिश को अल्लाह ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन अली ने जब नमाज की हालत में ज़कात दी तो कुरान की आयत ने आकर के गवाही दी कि देखो तुम अपने में और अली में फर्क समझो। तुम वो हो जो शरीयत के ताबे हो और अली वो है जिनकी शरीयत ताबे है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले शरीयत जो है। लेकिन एक खराबी हमारे समाज में आ गई है कि हम लोग जो है मजलिस को क्या करते हैं कि इबादत है, इबादत है। लेकिन बहुत से लोग इस इबादत में एक और इबादत करने लगते हैं। कौन सी ऐसी ज़रूरत है कि आधा घंटे एक घंटे में अगर मोबाइल न चलाएं तो कोई आफत कट जाएगी। इतने जो है वो बिजी हैं कि बगैर मोबाइल के उनको रह नहीं सकते। भाई आप इबादत है, आप इबादत है। नमाज पढ़ते वक्त आप चाहें कि मोबाइल चलाएं तो नहीं चला सकते। रोज़ा रखते हुए तो चलिए चला भी सकते हैं, लेकिन जब तवाफ करते रहें, बहुत से लोग जो आप लोगों को तवाफ करते हुए वीडियो दिखाते हैं, देखो मैं खाने का बार तवाफ कर रहा हूँ। किसी का तवाफ तो अब नहीं होता है, ये शरीयत का मसला है। हज कर चुके हैं अकबर भाई, हम भी कर चुके हैं, बड़ा बारीक मसला है। जितने इस चक्कर में कि मैं जगम भाई तुम्हें ज़ियारत करा रहा हूँ, न तुम्हारी ज़ियारत होगी ना उसका जो है तवाफ होता। तो ये रील बनाने के चक्कर में सब जो है गायब हो जाता है। गोया ये उसूल है कि एक वक्त में एक ही इबादत होगी हमारी। हम अली नहीं है, हम हसन नहीं है, हम हुसैन नहीं है, हम में और उनमें फ़र्क है। तो इसलिए इस बात का जो है ख्याल रखिए कि ये इबादत और ये ऐसी इबादत है जिसमें फर्श पर जो है शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा और सबसे बढ़ करके जो है जिस इमाम की इमामत में हम वो खुद जो है इसका पुरसा लेने के लिए अपने जद का तो खुद जो है अपने जद के फज़ाइल और मसाइब को जो है सीखने के लिए मौजूद है। तमाम चीज़ों को जो है छोड़ करके, और हम इतने बिजी हैं कि मोबाइल पे मोबाइल, उंगली पे उंगली जो है चली जा रही है। तो छोड़ दो देर के लिए। और अगर जो है नहीं कर सकते तो क्यों अपने आप को गुनहगार कर सकते? आप जो अपने आप का तजिया कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम कोशिश करें इस फर्श अदा से उठें तो उस कमी को दूर करें। अगर उस कमी को दूर कर लेते हैं तो इस फर्श अदा पे आने का मकसद है। और अगर दूर नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही है। मान लीजिए जाकिर ने पढ़ा कि भाई नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज दीन का सुतून है। यह एक ऐसा जो है अमल है कि अगर ये अमल कबूल तो सारे अमाल कबूल। और आप सुन के जो है वैसे ही बेनमाजी रहे, कोई फायदा नहीं उस मजलिस से। ठीक है, फायदा भी होता है, इस मजलिस ऐसी चीज़ है। और मैं तो इसीलिए अब किसी से कहता भी नहीं कि भाई जल्दी आ जाओ या बाद में आ जाओ। जब भी जो भी आ जाए मजलिस में तो इस फर्श से मिलता ज़रूर है। कुछ नहीं, ज़ियारत के बाद भी आएगा तो घर वाला तबरुक तो देगा ही।
तबर्रुक तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो इस दर से तो मिलना ही मिलना, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब इस दर से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, उन लोगों में शामिल हों जो सबसे बेहतर आकर के सबसे पहले बैठते हैं। इसलिए इस मजलिस को इबादत जो समझिए, हमारे बुजुर्गों ने ये जो नेमत दी, इस नेमत के सबब हमारी कौम का बड़ा वक़ार है। हम जानते हैं कि हम कितने जाहिल हैं, लेकिन दूसरी कौम में ये वक़ार है कि ये बहुत पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे इसीलिए हैं कि आपको भीख मिलती है अहले बैत के तरफ। अगर वो भीख मिलना बंद हो जाएगी तो आप दुनिया में सबसे दलीलो खार हो गए। ये अहले बैत का तसद्दुक, ये उनका करम है, उनका एहसान है। और इस चीज को करबला के जो है उन साथियों ने समझ लिया था, जिसे हुसैन ने जो है 72 हुसैन की शक्ल में तब्दील कर दिया। 72 हुसैन की शक्ल में। मैं हुसैन के बराबर नहीं कह रहा हूँ साहब हुसैन को, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि जब हमारा आखिरी इमाम ये कह रहा है कि हमारे माँ बाप पैदा हो जाए तो उनकी अजमत को सलाम जितना भी किया जाए वो कम। हमारे अइम्मा ने जब कहा कि हमारे माँ बाप जो है पैदा हो जाए तो फिर तो उनकी अजमत का क्या है। और देखिए मिजाज से जो वो होता है, इंसान जो है पहचाना जाता है मिजाज। करबला एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके हर फूल में हुसैन जैसी खुशबू मौजूद है, हुसैन जैसी फिक्र मौजूद है, हुसैन जैसा विजन मौजूद है। सिर्फ सबके जहन में ये है कि दीन इस्लाम बाकी है, हम मर जाएं, हम कट जाएं, हम खत्म हो जाएं। यहाँ तक कि उन साथियों ने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शब आशूर की इसी बात का याद किया कि मौला अगर 1000 बार भी हमें कत्ल कर दिया जाए आपकी इताअत से बात नहीं। गोया मैसेज दिया जो है करबला के जो है उन अंसार कि किसी भी हालत में अपने इमाम की इताअत से अपने आप को अलग मत करें। अगर इताअत से अलग हो गए तो फिर तुम्हारा रहना सब, और फिर उसके बाद चाहे मौत आ जाए, अगर मौत भी आ जाएगी तो तुम अलैहिस्सलाम बन जाओगे। न इसमें वक्त की कोई कैद है, न सिन की कैद है, न जात की कैद है, न मजहब की कैद है। फिक्र हुसैनी होना चाहिए, और हुसैनी फिक्र ये है कि इंसानियत की बका होनी चाहिए, इंसानियत का वक़ार जो है वो ऊंचा होना चाहिए। इस चीज़ को करबला के जो है उन शहीदों ने पेश। मैंने एक जो है कैरेक्टर गुर का हवाले से बात की, गुर जो है कैसा कैरेक्टर जो हुसैनी फख्र का, हुसैनी जीत का जो है सिंबल बन के, अलामत बन के पूरी जब तक कायनात ये है उस वक्त तक जो है जगमगाता रहे। यह ऐसा सूरज है, और ऐसे ही सूरज जो है जमा करके हुसैन ने करबला की वो नूरानी फजा तैयार की, जिस फजा से जो है जो लोग करबला गए उसकी तो महसूस करते हैं। जन्नत का क्या तस्वुर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो करबला गए हैं उन्हें ये बात जरूर एहसास होता है कि हम जन्नत में आ गए, हम जन्नत में आ गए हैं। और इसीलिए जो है जो ज़ाहिर की फजीलत है दुनिया में किसी की नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत है, और दोनों रवायतें हैं, हज़रत उम्मे सलमा से भी, हज़रत आयशा से, दोनों रवायतें मौजूद हैं कि मेरे हुसैन की ज़ाहिर की बहुत अजीम मंज़िल। जब हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे हुसैन को जब मुझसे कभी जुदा किया, कभी भी हुसैन आए तो उनके लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो कहा कि इतना जो है आप इस नवासे से मोहब्बत करते हैं, कहा मेरा नवासा वो है कि कोई अगर ज़ियारत उसकी कर ले तो उसको इतना सवाब मिलता है जैसे उसने मेरे साथ मकबूल हज किया हो, मेरे साथ मकबूल हज किया हो। अगर मेरे हुसैन की ज़ियारत कर ले तो उसको मेरे मकबूल हज। ताज्जुब से जो है उम्मुल मोमिनीन ने जो है फौरन कहा आपके साथ मकबूल हज सिर्फ जो है इस बच्चे की ज़ियारत से, कहा कि 70 जो है मेरे मकबूल हज के बराबर जो है मेरे परवन की ज़ियारत। आप ये समझिए रसूल के साथ जो है हज, और वो भी कबूलियत वाला। हमें नहीं मालूम कि मेरा हज कबूल हुआ, लेकिन रसूल अगर कह दें कि तुम्हारा हज कबूल है, अगर अली कह दें कि तुम्हारा हज कबूल है, अगर हसनैन कह दें कि तुम्हारा हज कबूल है, और
सादिक और रसूल अमीन कह रहा है कि मेरा अच्छा इतना सवाब जाहिर है, लेकिन हमारे छठे इमाम जाफर सादिक और हमारे 11वें इमाम और 8वें इमाम तीनों से जो है ये रवायत है कि मेरे जद की ज़ियारत करने वाला जो है उसका वही सवाब है जो मेरे जद ने जो है बयान किया। मौला अगर जो है मौला हुसैन ना हो, कहा उनके बाद जो उनके कब्र की ज़ियारत अगर कोई करता है तो उसे भी वही सवाब। कोई जो है अगर उनके कब्र पे नहीं पहुंच पाए, कहा उसकी शबी बना लो, उस शबी की ज़ियारत करते रहो। अगर वही खुलूस है, वही तसव्वुर है कि रसूल ने फरमाया है, सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया है, तो तुम्हें वही सवाब मिलेगा। तो ये तसव्वुर, ये खुलूस, ये इखलास और ये सोच और ये फिक्र अगर करबलाई है तो अपने अंदर आप तब्दीली महसूस करें। और अगर तब्दीली नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप अपना तज्जिया कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हम उन पाको ताहिर ज़वात के साथ जो है अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुला सिवाय गमे मजलूम करबला। करबला सच है। और रिवायत ये बताती है कि हमले ऊला में जब यजीदी फौज ने, उमर साहब की फौज ने 10,000 तीरंदाजों को हुक्म दिया कि हुसैन को नमाज न पढ़ने दो, हुसैन को नमाज नहीं पढ़ने देनी है, इसलिए कि हुसैन चाहते हैं कि नमाज का क़याम हो और हम चाहते हैं कि नमाज कायम न हो। हुसैन ये चाहते थे कि नमाज का क़याम न हो, नमाज का क़याम हो, और इधर जो है यजीदी फिक्र ये चाह रही थी, बनी उमैया की फिक्र ये चाह रही थी कि नमाज तो मुसलमान पढ़े लेकिन नमाज का क़याम न हो, नमाज की रूह जो है उसके अंदर न हो। इसीलिए जो आप देखते हैं कि बहुत से नमाज के बारे में, नमाजियों के बारे में कुरान का ये हुक्म है कि बहुत से ऐसे नमाजी हैं जिनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। असल में एक्सरसाइज और प्रैक्टिस का नाम जो है नमाज नहीं, नमाज जो है कुर्बतन इल्लाह का नाम है, अल्लाह से करीब होने का नाम है। अगर नमाज पढ़ के अपने आप को अल्लाह से करीब महसूस करते हैं तो वो नमाज, जैसा कि फर्जंद रसूल ने अपने सहाबी जनाब अबू समामा सैदावी के ख्वाहिश पर जब उन्होंने कहा, आसमान की तरफ देखा, फर्जंद रसूल मुझे इस वक्त जो है ज़ोहर का अव्वलीन वक्त जो है महसूस। उसके बाद मौला ने जो है दुआ की, क्या खुशनसीब है अबू समामा। मौला ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजार में करा, जिसको हुसैन नमाज गुजार कहते उसकी नमाज में क्या शक है। चुनांचे हुसैन ने कहा कि हाँ हाँ ए अबू समामा सैदावी, यकीनन ये जो है अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर, नमाज की समय मुरत्तब करो, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, नमाज जमात होगी। इसलिए कि हम करबला के मैदान में इसीलिए तो आए हैं कि हम नमाज का क़याम करें, हम नमाज को कायम करें, इसीलिए आए हैं। लेकिन आज नमाज का जो है अंदाज जो है, हुसैन जो है शरीयत के जो है मिजाज को बदल देते हैं। आज नमाज जो है अजीब व गरीब अंदाज में हो। अब तक जो है कायनात ने नमाज ये देखी थी कि इमाम के पीछे सब मुसल्ली होंगे, लेकिन आज देखेंगे कि इमाम के आगे भी मुसल्ली होंगे, और ऐसे मुसल्ली होंगे कि वो न रुकू कर रहे होंगे, न सजदा कर रहे होंगे, न क़याम की हालत में होंगे, बल्कि अपनी इमाम की इताअत में जो है कभी सीने पे तीर ले रहे होंगे, कभी पेशानी पे तीर ले रहे होंगे, कभी बाजुओं पे तीर ले रहे होंगे। ए मेरे जानिसारो, सईद व ज़ुहैर आ जाओ और मेरे आगे जो है खड़े हो जाओ। देखिए जो है हुसैनी फिक्र कैसी होती है। हमारे जैसा कोई होता कहता कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, क्यों ना जो है मौला हुसैन के पीछे नमाज को अदा कर लें, लेकिन हुसैन को समझने
वाले थे, हुसैन को जानने वाले थे, हुसैन की मारिफत रखने वाले थे, उनमें से जो दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि मौला हमें जो है आप आगे कर रहे हैं, इमाम का हुक्म है कि मेरे आगे हो जाओ, अब हमारा जो है ये हुक्म है। जाहिर है उन दोनों को ये भी पता था कि 10,000 जो है लश्कर हमारे ऊपर तीरों की बारिश कर रहा है, लेकिन देखिए यकीन क्या होता है, इस्तेहकाम क्या होता है। करबला के इन जो है हुसैन के जानसारों से समझिए कि 2 लोग जो है 10,000 फौज के आगे जो है खड़े हो गए और कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 तीर आ रहे हैं, हमारा सिर्फ ये काम है कि हम अपने इमाम की हिफाजत करेंगे और नमाज को जो है कायम करने में मददगार हो जाएंगे। चुनांचे शहीदों जो है कभी आगे बढ़ के जो है तीर को ले लेते हैं, कभी दाहिनी तरफ तीर को ले लेते हैं, कभी बाईं तरफ जो है तीर को ले लेते हैं। जैसे ही हुसैन ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, इधर जो है दोनों जानेसार तीरों के ताब न ला करके वो गिर जाते हैं। दौड़ करके मौला हुसैन शहीद के पास पहुंचते हैं। ए शहीद तुम्हारी क्या हालत है? एक बार शहीद कहते हैं कि मौला हमने जो है नमाज के क़याम करने में मदद की ना, नमाज तो कायम हो गई, नमाज तो आपकी मुकम्मल हो गई। कहा हाँ शहीद, तुमने हक के फिदाकारी अदा कर दिया और जो है तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो। मेरे नाना रसूल खुदा देखो तुम्हारी बाली पे तशरीफ रखते हैं, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा मौजूद हैं, मेरे भाई हसन मौजूद हैं तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए। और एक बार जो है ज़ुहैर की तरफ आए, ज़ुहैर ने कहा मौला मैं अपने साथियों से कुछ बात जो है करना चाहता हूँ। कहा अच्छा मेरे साथियों आ जाओ। एक बार कहा कि ये हबीब ए ज़ुहैर जरा मेरे करीब आ जाओ, जख्मों की ताब लाने से मैं तेज नहीं बोल सकता हूँ। एक बार ज़ुहैर और हबीब आ गए और उसके बाद जो है ज़ुहैर और हबीब के कान में ज़ुहैर ने जो है क्या कहा, एक बार जो है कहा मौला हुसैन की तरफ देखते हुए, ए मेरे भाइयों, मेरे आका और मौला हुसैन को तन्हा छोड़ के न जाना। ये कह के अरे ज़ुहैर की रूह कब्र से उनसरी को परवाज कर गई। मैं कहूँगा ए शहीदो ज़ुहैर, तुम कितने खुश नसीब थे कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए, तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए अरे रसूल खुदा मौला अली मुर्तज़ा जनाबे इमाम हसन अरे तमाम लोग आ गए कि तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद असर का हंगाम होगा, कोई नहीं होगा, न अकबर होंगे, न अब्बास होंगे, न कासिम होंगे, न उन मोहम्मद होंगे, हुसैन को तन्हा होगा, शिमर का खंजर होगा। अरे कोई नहीं जो हुसैन की गरीबी पे आंसू बहाए। हाँ एक बहन अरे ऊंचाई से खड़ी हुई ये मंजर देख रही थी, बेसरे साथ के मनहूस बच्चे, अरे तू खड़ा हुआ देख रहा है और मेरा भैया अरे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही मा क़बल हुसैन।